Welcome back. This is lecture 2 of auditing, and this is for subject CAAP of CMA Intermediate, June 2022 attempt. तो ये है lecture 2 auditing concepts का. कल हमने स्टार्ट किया था ऑडिटिंग. हमने ये देखा था कि नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग वगैरह सब हमने देखा था. हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग हमने देखा था. ठीक है, कब कब कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है वो सब हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था. ओके, वी हैव डन ओनली टिल हियर. यहाँ तक. नाउ टुडे so this is what we had seen yesterday, right? Brief history of auditing and all that. As I've already told you in previous class, okay, auditing as a subject is only 150-160 pages, and the notes will be only of 100 pages that way. Okay, so in 100 pages you are getting 50 marks. So it has the best value for marks. Okay, auditing has the best value for marks in any subject. Okay, next being your strategic management. So next इसमें आता है 30 marks का आपका strategic management है, that comes second, but auditing hands down is first. इसलिए इसको पूरा करना है, ये बात याद रखिए. हम लोग कई subjects में it is needed, we know कि we have to leave some parts of subjects, right? The course is very vast. जैसे जैसे एग्जाम आता है, you think of leaving some subjects and topics. ठीक है, ऑडिटिंग को बिल्कुल मत चूज कीजिए इसके लिए. ओके, ऑडिटिंग को पूरा करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पूरा करना है. ओके, वैल्यू फॉर मार्क्स बहुत ज्यादा, आपको कम पढ़ने हैं, ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. You're studying less and you're getting more marks out of it. Okay, so then now we'll continue with the definition of auditing. ठीक है, so basically it is derived from audier. ठीक है, लैटिन वर्ड ऑडियर. जैसे हम यूज करते हैं ना, am I audible बोलते हैं, राइट? इसमें am I audible है ना, आपको सुनाई दे रही है क्या मेरी बात, राइट? सो ये उसी ऑडिबिलिटी से ये वर्ड हैज बीन डिराइव्ड. ओके, सो दैट ऑडियर इन लैटिन मींस टू लिसन और टू हियर. तो पहले पहले क्या होता था, क्यों उसके थ्रू ऑडिटिंग का नाम ऑडिटिंग बना है. रीजन बीइंग olden days में जो ऑडिटर when he used to come, ठीक है, अकाउंट्स उसके सामने होते थे. ओके, then he used to just go through them, and if he found something wrong or anything, okay, then he would call for the employee or officer, whoever was responsible for it, बुलाता था. फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनते थे. Okay, his explanation, he used to, that employee used to give explanation, auditor used to hear. ठीक है, तो इस कारण उनका जो नाम है, हियरिंग का हमने देखा है कि he used to listen to them, इसीलिए his name has become auditor. This is how the word auditor came into being. ठीक है, अब इसके कुछ definitions देखेंगे. आपके स्टडी मटेरियल में you have got 4-5 definitions. Okay, you don't have to learn them all. एक या दो डेफिनेशन अगर आप लर्न कर सके, सर पिक्ड अप द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, then it is good. If you can just learn 1 or 2, if you get any short note on auditing or something like that, और एक डेफिनेशन आप लिख पाते हैं, then it will give more credibility to your answer. तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, कर लीजिए. It is simple. So I picked up the smallest 2. First is Taylor and Perry. Okay, audit is defined as investigation of some statements of figures. Investigation of generalize किया गया है इसमें, investigation of some statement of figures. ठीक है, involving examination of certain evidence. ठीक है, जब investigation of some statements करेंगे, then you will examine some evidence. इसको लेके कुछ evidence को ये करेंगे. स्टेटमेंट में लिखा है कुछ कि इतना इतना है, तो उसको लेके some evidence देखेंगे, some vouchers देखेंगे. Okay, the examination, they will examine some evidence. Okay, once they start checking the statements, okay, they will see some evidence related to that. और इससे सब क्या होगा, इससे बस ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना पाएगा, बस इतना ही बोला जा रहा है. ओके, ऑडिटर will be able to make report because using this. What he'll do, he'll investigate some statements. Okay, right, and then he'll use some evidence for that investigation.
बेस्ड ऑन दैट he'll make a report, that's all. ठीक है, तो इसको ये छोटा डेफिनेशन है टेलर एंड पेरी का. दे आर सेलिब्रेटेड ऑथर्स. टेलर एंड पेरी के बहुत सारे डेफिनेशन है ऑडिट में, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल, राइट. सो दे आर सेलिब्रेटेड ऑथर्स. छोटा डेफिनेशन है, यू कैन ऑलवेज कोट देम. ठीक है. और देन एक है जो प्रोफेसर मॉन्टगोमरली का. ओके, ये जो है इट इज इवन मोर लॉजिकल देन द अबव वन, सो यू कैन आल्सो लर्न दिस वन. ठीक है, एक भी याद करेंगे तो इनफ है. कोई एक के लिए जा रहे हैं, ओनली वन इफ यू वांट टू डू, जस्ट डू दिस वन. या तो फिर ये दोनों भी कर सकते हैं. ओके, सो हियर व्हाट ही सेज इज इट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एनी ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी, बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन. क्यों क्यों कर रहे हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन? इन ऑर्डर टू एसर्टेन और वेरीफाई. ओके, एसर्टेन और वेरीफाई कर रहे हैं एंड टू रिपोर्ट अपॉन, ओके, द फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस. यानी उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस का रियल फैक्ट कितना ट्रू है, कितना ट्रू नहीं है. ओके, एंड द रिजल्ट देयर. रिजल्ट क्या है आपका? पीएनएल और बैलेंस शीट. ठीक है, आपका जो ईयर लॉन्ग जो आप काम करते हो, it is finally summarized in your P&L and balance sheet. So the result thereof का मतलब बात कर रहे हैं, is talking about P&L. Excuse me. So he's talking about P&L and balance sheet. Okay, yeah. So this is more logical. तो ये आपको याद करने में भी थोड़ी easy जाएगी. और it is a systematic examination of the books and records. Systematic examination of the books and records. ये हमको मालूम है already, right? It is a systematic examination of the books and records, right? Of business or other organization. यानी basically there is touching up. It can be a profit, non-profit, any type of organization. ठीक है, और so ये पहले बता रहे हैं किसका है examination. That is first part of the sentence जो अभी मैंने underline किया हूँ. क्यों? To ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operations and result thereof. ठीक है, तो इससे जो facts regarding financial operations and result thereof जो दो पूरा है ये sentence, it is talking about the final statements. ठीक है, so ये हो गया मॉन्टगोमरली का डेफिनेशन. आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं. जस्ट वन इफ यू लर्न, कुछ शॉर्ट नोट वगैरह आएगा एंड यू कैन राइट वन डेफिनेशन, तो आपको इम्पेटस देगा. तो आपको जो एग्जामिनर आल्सो विल थिंक दैट नो, आई मीन ही इज अमंग द सेलेक्ट फ्यू 20% स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्सिमम विल नॉट राइट द डेफिनेशन. ओके, सो ओवरऑल जैसे आपने सुने भी होंगे पहले, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. आई विल रिपीट अगेन, यू माइट हैव हर्ड बिफोर. When an examiner, just think about yourself also. If you are correcting any paper, okay, and you don't know the person, so when you see the way the person has started answering, on that आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हो उस पर. अच्छा अच्छा, ये ऐसा स्टूडेंट है, जैसे कुछ अच्छी चीजें वो लिख रहा है, कुछ लॉजिकल, उसके आंसर में कुछ अच्छा लग रहा है आपको स्टार्टिंग में, तो आपका ओपिनियन अच्छा फॉर्म हो जाता है. So what happens is when आगे का करेक्शन होता है, he has less time just to evaluate quickly. आपने इतना एक पेज लिखे हो, एक पेज पढ़ने का फुर्सत किसी के पास नहीं है. That's a fact. एक अगर एग्जामिनर को 100 पेपर करेक्ट करना है, या मान लीजिए 200 500 ऐसा कुछ करेक्ट करना है उसको, तो कहाँ से पढ़ेगा वो? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. आई एम टेलिंग यू कि आपको 50 पेपर का आप नहीं पढ़ सकते. So you only go through the main points what the person has written and the reputation which the student has already conveyed to you. तो आपका reputation है कि ये अच्छा student है. Then आप जब उसका paragraph आप देखोगे, this paragraph, say out of 6 you will give him 5. क्यों? आपका reputation अच्छा है, आपने पूरा नहीं पढ़ा. ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो आप पहले के आंसर्स आपको ठीक नहीं लगे उसके. ओके, यू डिड नॉट लाइक हिज इनिशियल आंसर्स. सो आप फिर ये सपोज उसने सेम लेवल का आंसर लिखा है, तो भी उसको 5 में, इसमें 6 में से 4 मिलेंगे उसको. Why did he lose 1 mark? Because of its reputation. Because of his reputation, he has lost that mark. तो इसीलिए भी बोला जाता है कि जब आप
स्टार्टिंग का जो पेपर लिखते हो, फर्स्ट 20-25% ऑफ पेपर, राइट इट वेरी वेल, बिकॉज वहीं से आपका इमेज फॉर्म होता है. ओके, so your image is formed on your first part of the paper. Now यहाँ next जो ICAI, so just bracket में CA लिख देते हैं, so we know it's not CMA, it is CA. Okay, so now auditing is the core part of CA Institute actually, right? CA Institute का subject matter है. So CA Institute definition is very important. ठीक है, ये भी आपको कोशिश करना है कि आप याद भले ही ना करें, आप इसके मेन पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर. ट्राई एंड रिमेंबर द मेन पॉइंट्स. ये बोलते हैं सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ठीक है, ये कंसिस्टेंट है, जो मॉन्टगोमरली ने जो बोले थे, इज कंसिस्टेंट विद दैट. अब ये बोल रहे हैं ऑफ डेटा स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट के अंदर डेटा रहेगा. ठीक है, और ये स्टेटमेंट और डेटा दोनों आपके रिकॉर्ड के अंदर रहेंगे. ओके, स्टेटमेंट डेटा रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट डेटा रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंसेस. ठीक है, ऑपरेशंस मतलब बेसिकली आपका जो है पूरे साल भर में हाउ आर योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स कम अंडर ऑपरेशंस. एंड परफॉर्मेंसेस, परफॉर्मेंसेस विल बी योर P&L एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस. स्टेटेड पर्पस क्यों बोला गया है? क्योंकि आपका ऑडिट का एक पर्पस रहेगा कभी भी. ओके, either it will be a statutory audit, जो आप generally auditor want to see whether the books are stating a true and fair view. ये word बहुत important auditing में, true and fair view. किसका true and fair view? True and fair view of profit and loss, true and fair view of आपका state of affairs as showed in the balance sheet. ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल. लेकिन और बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं. देयर कैन बी अ कॉस्ट ऑडिट, जहाँ पे फोकस इज ऑन कॉस्ट की, कॉस्ट का जो आपका जो कॉस्ट डेटा वगैरह, इज इट वेल प्रिपेयर्ड, क्या आप इनएफिशिएंसी को रिमूव कर रहे हैं, वो उसका हुआ है. तो कॉस्ट ऑडिट द पर्पस इज नॉट टू कमेंट ऑन बैलेंस शीट. इसीलिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड स्टेटेड पर्पस. ठीक है, so in any auditing situation ऑडिटर क्या करता है? वो परसीव करता है ना, पहले देखता है कि मेरे को करना क्या क्या है, the proposition before him. ठीक है, he just sees, okay, ये ऑडिट मिला है, what all I should do now, I've got this audit, what is the thing I should do. So he perceives the proposition before him for examination. Okay, तो उसके लिए then he'll start collecting evidence. Okay, evidence will be for each transaction in your P&L, okay, or in your books of accounts. First he'll see the P&L, one line item he'll see, let us say whole salaries he'll get. So if he feels doubtful, he'll go to the next drill down, which is your ledger showing the salaries account. वहां देखेंगे, वहां में if he feels that no, there is some discrepancy, the thing which is showed in April and which is showed in July, somehow not matching up, so then he will go for further drill down, that is vouchers based on that has been entered. ठीक है, जो वाउचर्स है जिसके ऊपर वो एंटर किए गए वो देखेंगे, that is called evidence. ठीक है, और they will evaluate the evidence और उसके बेसिस में he forms a judgment. ठीक है, और जो जजमेंट बन जाता है वो फाइनली क्या होता है? he writes a formal audit report, उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. Okay, he'll tell that this is what I have found out, this is the position. Okay, so this is your definition of CA's definition, which is very comprehensive, covers everything. ये modern definition of auditing है, and in this it is covering the entire, you know, the purpose of modern audit. ठीक है, so ये बहुत अच्छा definition है. If you can learn, well and good, लेकिन जैसे मैंने बोला कि if you cannot learn, just remember the main points, that's all. Okay, so जो audit है वो करता क्या है? It determines the degree of correspondence between information and established criteria. So what is established criteria? Vouchers जैसे आपके, वो आपका proof है. ठीक है, ठीक है, वाउचर्स के ऊपर से एंट्री हुई है. ठीक है, दैट इज द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया. नाउ व्हाटएवर इज द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, दैट शुड बी समराइज्ड इनटू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट? सो मैं ये बोल सकता हूं कि
all these are vouchers. ये है basic first hand information which was there with the company. Okay, these are all vouchers. Now, using all these vouchers, what has been done is they have prepared the ledgers. ठीक है, इसको summarize करके they have prepared the ledgers. Okay, and then ledgers को further summarize किया गया. Okay, ledgers have been further summarized, and you have got what? You have got P&L and balance sheet. Okay, you have got, say this is your P&L account and say this is your balance sheet. ठीक है, ये इस तरह से आपका ये हुआ गया है. This is how the process has come. ठीक है, तो ऑडिटर काम कहाँ से चालू करता है? यहाँ से चालू करता है. Okay, he'll see from here, then पीछे पीछे आएगा. अब देखिए, normally if you see ऑडिटिंग का जो प्रोसेस होता है, ऑडिटिंग आपका कितना चलता है? 15-20 दिन, 1 महीने मैक्सिमम. ओके, नॉर्मली जो आपका फाइनल ऑडिट है, दैट डजंट गो बियॉन्ड से 15-20 डेज, मैक्सिमम अ मंथ. ओके, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि यू विल रिव्यू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. सो अगर आपके सामने स्टॉक है, सपोज यू थिंक अब स्टॉक का वैल्यू दे आर शोइंग इज 40,000, you think, so auditor thinks it should be 38,000. ठीक है, 2,000 का डिस्क्रिपेंसी है ना, इसके लिए कहाँ अपने वाउचर बुलाएंगे, ये करेंगे. so you will leave it. ठीक है, और एक चीज है, सपोज they have an asset, they are showing the value as 40 lakhs. now auditor feels that it should be 20 lakhs. तो अब इसके पीछे ही डू सारा ड्रिल डाउन वो करेंगे. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऐसा उनको पिक एंड चूज करना पड़ता है. छोटा मोटा ये है, दैट इज लेफ्ट. ठीक है, इस तरह से किया जाता है ऑडिटिंग. सो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए मैं बताना चालू किया आपको, ऑडिटिंग डिटरमाइंस डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, जो वाउचर्स वगैरह आपको मिला है, एक्सप्लेनेशंस जो दिए हैं आपके क्लाइंट ने. ओके, डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन व्हिच इज explanation given by your client and the documentary evidence like vouchers which you have. Okay, between the both are information basically for you, and the established criteria. So basically whatever the auditor has been able to establish, okay, ठीक है, इसमें ये this part is correct, auditor is sure about it, he will only try to establish correspondence between what the management is saying and this. Based on that, he'll get an idea of how true they are or how false they are. Okay, if they are true, जैसे मैंने examination में बताया था आपको, if the reputation is good, you will get more marks. Similarly, here, if the reputation of management is good as per the auditor, that they are giving proper evidences, everything, then of course his suspicion will be less. ठीक है. Then last thing is done by independent competent person. ठीक, ये ऑडिटर के in most cases the qualifications वगैरह determined. Okay, only person of that qualification can do audit. ठीक है, अब जो है हमारे जैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. ओके, बेसिकली देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एक तो है आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, देन यू हैव accounting standards. ठीक है, so this was basically supposed for Indian conditions. ठीक है, अब क्या हो गया इसके बाद, now you have Indian accounting standards also. इसमें specifically for Indian use अगर कुछ changes हैं, so that has been incorporated. So this accounting ये भी है अभी आपके लिए, and you have got Indian accounting standards also. So ये जो AS है, it is थोड़ा generalized है. Okay, this is specifically for our conditions. Okay, and this is for international use. ये हमारा लेना देना नहीं है. Okay, it is not issued by our institute. Okay, it is issued by an international body. Okay, so you have an International Accounting Standards Board, IASB. So this issues IAS. ठीक है, जबकि ये दोनों जो है हमारा ICAI has issued this also. ठीक है, this
was not there before. This has been started off late, ठीक है, क्योंकि ये देखा गया कि जैसे इंडियन कंडीशंस में थोड़ा बहुत रिफाइनिंग की जरूरत है बेस्ड ऑन आवर जो टर्म्स यहाँ चलते हैं एंड ऑल दैट, बेस्ड ऑन दैट, ओके, जस्ट टू सूट इंडियन कंडीशंस। तो इसीलिए ये जो एएस है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया एज इंडियन एएस, ओके। ये तो ये सारे हो गए, वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नाउ ऑडिटिंग, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए। अब ऑडिटिंग की बात करेंगे तो दैट इंटरनेशनल बॉडी जो उसका है, ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग, राइट। अब इफ आई टॉक अबाउट ऑडिटिंग, ठीक है, इसका जो बॉडी है इज IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और ये ICAI इज जस्ट इंटरनेशनल हटा दो तो आपको ये मिल जाएगा, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ऑडिटिंग के लिए ये दोनों सेपरेट नहीं है, देयर इज ओनली वन फॉर इट, ठीक है। और ये जो इश्यू करता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज फॉर ईच थिंग, कोई भी चीज के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस जो इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, करेक्ट। AS जैसे AS1, AS2, right, you have AS1, AS2, all that, this is what it issues, ठीक है। और what this issues is called as IAS और IFRS, ठीक है। तो कुछ केस में ये IAS बोला जाता है और कुछ केस में, और IAS पहले बोला जाता था, अभी जो लेटेस्ट व्हाट दे आर इशूइंग, इट इज इशूड अंडर द नेम ऑफ IFRS। सो यू आल्सो हैव IAS, आपको कुछ IAS रहेंगे स्टार्टिंग के जो रहेंगे काफी सारे, दैट विल बी कॉल्ड एज IAS, ठीक है। देन उन्होंने नेम चेंज कर लिया उसको कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इज व्हाट, फ्रॉम अकाउंटिंग दे हैव मेड अ डिविएशन टू रिपोर्टिंग, ठीक है। अकाउंटिंग की जगह रिपोर्टिंग वर्ड यूज हुआ है, तो इसीलिए ये IFRS आगे के हो रहे हैं। तो बेसिकली IAS और IFRS फॉर यू इज वन इन द सेम, ठीक है। तो सेम चीज है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूइंग, राइट। अर्लियर इट वाज कॉल्ड IAS, नाउ इट इज कॉल्ड IFRS। सो आखिरी के कुछ आप लेटेस्ट आप देखेंगे, दैट विल बी अंडर द नेम ऑफ IFRS, बस उतना ही है, ओके। इसलिए IFRS और IAS कुछ अलग चीजें नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंट थिंग्स, ओके। यहाँ पे ये AS हो गया, ये दिस इज इशूड एज IND AS, IND AS1, IND AS2, ठीक है, बस दिस इज हाउ इट इज। जैसे मैंने बोला फॉर ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, दीज टू आर वन, ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक ही इश्यू होते हैं, ओके। तो इसके दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सो इसका नाम होता है एक्चुअली IAS1, SA1, SA2, like that, okay, it's called SA1, SA2, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 1, ठीक है। इस तरह से उनका नाम होता है, ठीक है। ये SA पहले AAS इसका नाम होता था, अब ये नाम चेंज हो गया और नाउ इट इज कॉल्ड एज SA, ठीक है। दिस आर हाउ द स्टैंडर्ड्स लुक। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अभी हम ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल बी वरीड अबाउट SA, ठीक, ये पार्ट हमको पढ़ना है, ओके। तो चलिए, ओके सर। तो सबसे पहले जो है ना, ऐसे मैं आपको ऐसे का एक लिस्ट बताऊंगा, ठीक है, कितने ऐसे करके। So आपके कोर्स के हिसाब से यू डोंट हैव टू लर्न द होल थिंग, बट इफ यू नो द लिस्ट ऑफ ऐसे, वो कहीं भी हमेशा काम आएगा आपको। So I will show the list, ठीक है, उसको easy way of learning also I'll show you, ठीक है। उसको एक साथ में थोड़ा थोड़ा करके हम जब क्लास के साथ साथ ही will learn it, so you don't have to spend separate time on learning it. So you will know all the essays. So if you know all the essays, essay ही institute का guideline, it is a guideline of the institute for auditing. If you know the even the names of all essays, उसके अंदर क्या लिखना है, that you will easily understand, ठीक है। It is as good as having a good grip on auditing. So भले ही in your course there is no such list of essays, हम फिर भी वो will just go through that, okay.
सो दिस SA 200, ठीक है, मैं बीच बीच में आपको बताते रहूंगा, दैट इज ओके। सो व्हाट इज नॉट देयर इन योर कोर्स डायरेक्टली, वो मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे दूंगा आपको। सो बेसिकली इफ यू वांट यू डू इट, इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस अटेम्प्ट यू कैन लीव दैट आल्सो, इन वो आपको बहुत काम आएगा। यही नहीं, आगे जब भी आप ऑडिटिंग करोगे, ओके, यू विल हैव ऑडिटिंग इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर आल्सो। ओके, यस शिवम। Sir, AASB full form Auditing Auditing and Assurance Standard Assurance of. Standards Board, Okay, AASB, okay. Auditing and Assurance Standards Board, okay, SA Standards on Standard Auditing. on And you know AS already, right? Accounting standards. IND-AS is Indian Accounting Standards. Okay, IAS is International Accounting Standards. International Accounting Standards. And IFRS is International, International Financial Report. correct, Financial Reporting Standards. ठीक है, IAS and IFRS are same. Okay, वही हो गया ना, जैसे मैंने बोला, this was first called as AAS, SA was called as AAS, Auditing and Assurance Standards 1, Auditing and Assurance Standards 2, क्योंकि AS था Accounting Standards and Auditing Standard was AAS. Okay, then international trend के हिसाब से they renamed it. ठीक है, internationally it was called as Standards on Auditing, सब यूज कर रहे थे, just to standardize it with the world, we also made it SA. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने everything we replaced, AAS replaced as SA. यहाँ पे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जो है, इट इज स्टिल देयर, ठीक है, उसको चेंज नहीं किया, नाम है IFRS। इसीलिए कुछ IAS रह गए, अभी जो आ रहे हैं लेटेस्ट, इट इज कमिंग एज IFRS। ओके, सो बेसिकली बोथ आर सेम, IAS एंड IFRS। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला जो SAS, एज आई सेड, आई विल शो यू द लिस्ट ऑफ SAS, और विल जस्ट डिस्कस, यू नो, 5 6 essays in 5 minutes in every class। ठीक है, तो आपको बस एक आइडिया है, उसको कभी कभी जब जब टाइम मिलेगा थोड़ा थोड़ा विल रिवाइज इट, वी वोंट पुट टू मच टाइम, लेकिन जस्ट विल मेक श्योर कि आपको सारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आता है, एंड इट विल बी लॉजिकली कनेक्टेड, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वंस यू नो ऑल essays, आपको बहुत एज रहेगा इन राइटिंग ऑडिटिंग, you'll have an edge in writing any auditing paper if you know essay। ठीक है, so सबसे पहला is SA 200, which is, you know, which is called as basic principles governing the audit। ठीक है, so it was the basic principles governing the auditor's professional responsibilities, okay, and the conduct of audit in accordance with standards, ऐसा इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका तो शॉर्ट में वैसे बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट हम बोलते हैं इसको। ओके, सो इसमें जो है, ये ओनली टॉक्स अबाउट ऑडिटर का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इट इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन एसे। ठीक है, सो इसके पहले देयर इज वन स्टैंडर्ड व्हिच इज कॉल्ड SQC। ठीक है, SQC 1 बोलते हैं इसको, that is about quality control, quality control for an audit of financial statements is SQC। तो क्या क्या कितना क्या क्वालिटी आपको देखना चाहिए, what should be the agreeable quality, that is said by SQC 1। बट यहाँ पे फिर स्टैंडर्ड्स रियली चालू होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम SA 200। तो फर्स्ट वाला है आपका SA 200। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट इज SA 200। तो इसमें जो है एक इन्होंने एक डेफिनेशन टाइप बताए हैं। ओके, दे हैव गिवन यू अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, कोई भी टाइप की एंटिटी हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इट कैन बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंटिटी जो है,
बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, irrespective of size or legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereof. ठीक है, ये अगेन लाइक यू डोंट, यानी इसको तो कई बार जैसे पढ़ा था, जैसे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई रिमेम्बर दिस इन रोट, ये जो है, तो ये है आपका जो सीए का डेफिनेशन व्हिच वी सॉ, ऑल दोस थिंग्स, इफ फ्यू थिंग्स इफ यू कैन लर्न इट इज वेरी गुड, देयर वोंट बी टू मेनी थिंग्स टू लर्न, ठीक है, आपका पॉइंट्स रहेंगे इन ऑडिटिंग, जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इसमें ये लिखना है करके, एज सच फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं कहीं है, एंड इफ यू लर्न दैट इट इज गुड, ठीक। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करना है, डेफिनेशन में कोई एक डेफिनेशन मिनिमम यू शुड नो, ठीक है। सो चलो, सो नाउ दिस इज essay 200 इज गिविंग यू दिस मीनिंग ऑफ ऑडिट, सो इसी चीज को हम डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज ऑडिट, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, ओके, of books of accounts done by independent qualified person, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह विल सी इन डिटेल लेटर ऑन, जैसे जैसे आएगा वो अच्छे से पूरा डिटेल में बताया गया है, राइट। सो बेसिकली यू नो लाइक जैसे आपको मालूम है कि क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल ऑडिट डिफरेंट है, फॉर कॉस्ट ऑडिट इज डिफरेंट, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए डिफरेंट है, राइट। सो इट इज डन बाय इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन, done using vouchers, documents, information and explanations received from client, okay, ये इसी को डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑडिटर क्या करता है, he satisfies himself that financial accounts are authentic, ठीक है, ये करने के बाद, ये सब ये 4 स्टेप्स करने के बाद देन वो रिपोर्टिंग करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ओके, he will give an audit report after this, एंड वो है रिपोर्ट में क्या बताएगा कि बैलेंस शीट एग्जिबिट सी, यहाँ पे रिपोर्टिंग में ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ट्रू भी है और फेयर भी है। फेयर इसलिए यूज होता है कि कहीं कहीं यू नो यू हैव टू गो विद सम अप्रोक्सीमेशंस वगैरह लेके चलना पड़ता है, इन दैट केस आप उसको 100% करेक्ट यू कैन नॉट से, बट इट इज फेयर यू कैन से, ओके, इन द सर्कमस्टेंसेस। सो this is balance sheet exhibits a true and fair view of state of accounts, and profit and loss account exhibits a true and fair view of profit and loss, 2 पॉइंट यही कवर हो गए, ओके। तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, क्या, बैलेंस शीट एग्जिबिट्स a true and fair view of state of affairs, profit and loss reveals a true and fair view of profit and loss, okay, and it is in conformity with law। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, बिल्कुल सारे वाउचर एंटर किया है, all vouchers they have entered, and you know it is prepared perfectly, but the business is illegal, is it okay? It's not okay, right, है ना, इसलिए it should be in conformity with law also, ठीक है, अगर business illegal है then auditor will have to write this, ठीक है, if he is not satisfied, अगर किसी भी ऊपर के तीनों चीजों में is not satisfied, तो रिपोर्ट करना है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको क्लियरली बताना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्ट में जो है एक बोलते हैं जिसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं, व्हेन ऑडिटर क्वालिफाइज हिज रिपोर्ट, यानी वो बोलता है कि इस पार्ट में, जैसे मैंने सब देखा, इस पार्ट को मैंने डिटेल में नहीं देख पाया, बट बेस्ड ऑन दिस आई एम गिविंग माय ओपिनियन, ठीक है, तो ही क्वालिफाइज हिज ओपिनियन, ठीक है, यानी वो एब्सोल्यूट सर्टिफिकेट नहीं देता है उस पर्टिकुलर पार्ट के, okay, so then we'll talk about features of auditing, ठीक है। so अभी features of auditing में क्या क्या आते हैं, so ये सब आपके point wise आंसर है, ठीक है, all these are, आपको बस याद रखना है इसमें मेन पॉइंट क्या है करके, ठीक है। so this evaluation of relevance, reliability, adequacy of evidence in support of vouchers, document, explanations, ठीक है, इसमें 3 वर्ड है, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इवैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट, वाउचर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, ऐसा लिख सकते हो, यू कैन जस्ट शॉर्टन इट, ठीक है। एनालिटिकल रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स,
अब इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह हम देखेंगे आगे क्या है। वो ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल टेक अ बैंक, इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि इफ one person is say collecting the information from the public, okay, now this should go from here to a person who is totally unrelated और इसका और इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, okay, there should be no direct connection between these two, it should go here to an unrelated person. So the way it is moving ऐसा होगा कि एक आदमी ने अपनी कुछ गलती किया है, if he has done some mistake here, he will not be able to go through the trail and correct it, ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा कि there will be many independent people set, so wherever he can correct it, वहां पे the information might not be authentic क्योंकि this person has a chance to correct it, so auditor will test the system, इसको बोलते हैं internal control. If internal control is very tight, तो उस सिस्टम के डेटा को आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, you can trust the data more if internal control is tight, okay. So review systems of accounting and internal controls. Of course we know, जैसे हमने देखा information audited always financial नहीं है, जो latest definition which we saw modern of ICAI and all, ठीक है, it is also एक आया था operations, ठीक है, operations यानी सारी चीजें कैसे है, मतलब is it all well set, ठीक है, जो नॉर्मल जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है क्या, ऑल दोस थिंग्स कम अंडर योर ऑपरेशंस ऑडिट, ओके। जो आपका जो आपने जो ऑपरेशन सेट किए हैं, जो फैक्ट्रीज एंड व्हाटएवर इज योर आपका क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं कई चीजों में, जैसे ये होता है, ये देखते हैं कि आपका जो सेटअप है हाउ इट मैचेस अप विद अदर सेटअप्स, इज इट गोइंग टू सस्टेन और नॉट, उसका भी ऑडिट होता है, ओके। सो ऑल दैट, इट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बेसिकली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स का ही ऑडिट होता है, राइट, वही हमने ऊपर देखे थे अभी इन ICAI डेफिनेशन, दैट्स व्हाट वी सॉ, ऑडिट cannot will not always be a financial thing, okay, it can be of non-financial things also, okay. So and then kya tha, next feature is there should be some standard with which the auditor should be able to compare, right. And then last is he should be competent and independent qualified person auditor possessing the requisite qualification and COP, ठीक है। COP is certificate of practice wherever auditor has to be a chartered accountant, जहां भी CA की जरूरत है, जैसे as we have discussed, not all audits need a CA, so wherever CA is needed you should have a COP also, certificate of practice, ठीक है। so ऐसा कोई CA है जो कोई जॉब कर रहा है and he doesn't have a COP, obviously he cannot do that audit, okay. so you should have CA plus COP, always remember that. It ensure, फिर लास्ट फीचर क्या है ऑडिटिंग का, इट एंश्योर्स रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ट्रांजैक्शंस वगैरह ऑथेंटिक है कि नहीं, एंड असर्शंस मतलब जो जो बताया गया है, हाँ ये है बोल रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज असर्शन, ऑथेंटिसिटी ऑफ असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनेबल द ऑडिटर टू फॉर्म हिज ओपिनियन. व्हाट विल बी द ओपिनियन, अगेन सेम हमारा जो बोले, ओपिनियन विल ऑलवेज बी ट्रू एंड फेयर व्यू, किसका, P&L का, बैलेंस शीट का, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के लिए यू यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स, P&L के लिए यू विल यूज प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स ऑल, ठीक है, ओके. दिस इज अबाउट फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग. तो ठीक है, इसके बाद है नेचर ऑफ ऑडिटिंग. आई थिंक वी कैन बेटर कंटिन्यू इट टुमारो, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बोरिंग ना हो इसीलिए, ओके. तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो. द फर्स्ट चैप्टर इज प्योरली थियरी उसमें, बट एज यू कैन सी देयर आर सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इसमें, क्योंकि you are basically checking your financial accounts and other things, right? There's some kind of logic in auditing. Okay, yes Shivam. सर तभी आपने बोला ना A से 200 के पहले SCQ1 था या SQC1? SQC1. I'm confused. तो सबसे पहले SQC1.
तो ये बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है SQC1 है। ओके, सो दिस इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Quality control, not financial statements, it is quality control, okay, for a firm. ये SQC1 जो आपके ऑडिट फर्म के लिए बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ फर्म कंडक्टिंग ऑडिट, ओके, कंडक्टिंग ऑडिट एंड रिलेटेड assurances, ठीक है, एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट in accordance with standards. ये बताता है SQC1, this is SQC1, related financial information कर सकते हैं। ठीक है, so ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये जो आपका जो ऑडिट फर्म जो ऑडिट कर रहा है ना, दिस इज फॉर देम। बाकी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एसेस जो हम देख रहे हैं वो सब इनके सिस्टम में हम देख रहे हैं। जो हमारा ऑडिटी है, वी आर जस्ट गोइंग फॉर, वी आर जस्ट चेकिंग देयर सिस्टम, these standards are for the auditees system, ठीक है, दिस इज फॉर द ऑडिट फर्म, ठीक है, तो उनको उनको ये दे हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, वो है। ओके, सो विल कंटिन्यू टुमारो। ये अच्छा शॉर्ट इट विल बी गुड, आई थिंक 40 मिनट्स के लेक्चर्स हम करेंगे, विल कंटिन्यू विद इट। ओके, विल ट्राई टू डू इट, हो सके तो 3 days a week विल ट्राई टू डू इट। ओके, कभी कभार समटाइम्स विल डू इट ट्वाइस अ वीक, आई लेट यू नो अकॉर्डिंगली, ठीक है, टुमारो डेफिनेटली विल डू इट। ये तो जैसे इट्स अ स्मॉल पार्ट, ये हमारा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कंप्लीशन रिवीजन, सब कुछ हम कर लेंगे। विल हैव 2 रिविजन्स आफ्टर द कंप्लीशन, वेरी मच। ओके, अच्छे से करना है ऑडिट, देन यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 40 marks in audit, and I leave it to how well you do in the other part. If you're scoring 40 here, then you know your chances of scoring about 70, even if you do ordinarily in that part, company accounts, 70 is very much on, ठीक है। and this traditionally जैसे कुछ subjects है ना which are higher scoring, so traditionally OMSM and CAAP are higher scoring generally। आप overall average देखोगे, then these 2 subjects have the highest marks, okay, so they're set up in that way, so you can make use of that, you can exploit that, ठीक है। तो फिर हम अभी बंद करते हैं, that's all, we'll meet in our later classes today, okay, thank you sir।